Hello students, this is chemistry session for class 10th and today I am going to discuss some questions from NCERT in text. The chapter is metal and non-metal. So let us start. It is question number 1. Give an example of metal which number 1 is a liquid at room temperature. Can cut with knife. Next, the best conductor of heat next, the poor conductor of heat. Okay, so you have to give an example of a metal which is liquid at room temperature. कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सोडियम, सॉरी आंसर इज मरकरी. It exists in liquid state at room temperature. Next is can cut with knife, यानी ऐसा मेटल जो इतना सॉफ्ट होता है जिसको कि नाइफ से कट कर सकते हैं. तो दिस इज सोडियम. ओके, द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, this is silver. And next is the metal which is the poor conductor of electricity, that is lead. Okay, so these are the answers for these questions. Okay, now the next question is question number 2. Explain the meaning of malleable and ductile. Okay, malleable और ductile को एक्सप्लेन करना है
व्हाट इज मीन्ड बाय मैलिएबल एंड डक्टाइल? तो इसका आंसर होगा malleable, this is the property by which on hammering metals can be beaten into thin sheet. Okay, and next is ductility or ductile. What is meant by this? The metals can be drawn into thin wires so metals are said as ductile. ओके, तो मैलेबल का मतलब ये हुआ कि मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि हैमरिंग करके मेटल से थिन शीट बनाया जा सकता है और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबल. डक्टाइल मीन्स वी कैन ड्रॉ थिन वायर्स बाय द मेटल्स, मीन्स मेटल से वायर्स बनाए जा सकते हैं और इसीलिए मेटल्स को डक्टाइल कहा जाता है कि मोस्टली मेटल्स आर डक्टाइल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट equations for the reaction of part A is iron with steam and part B is sodium and calcium and potassium, calcium and potassium with water. Okay,
इसमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। आयरन विद स्टीम मीन्स जब आयरन स्टीम से रिएक्शन करती है तो इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है, और कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर से रिएक्शन होता है तो इसके लिए केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा ए, Fe plus H2O, it forms Fe3O4 plus H2 gas. Okay, actually this is mixture of iron second and third oxide. Okay, this is, so you can balance it very easily. You can see here O4 and here is single oxygen atom, so multiply it by 4. Okay, so now oxygen is balanced, but you can see hydrogen 4H2, here is H2, so multiply it by 4. So this is 4H2, and now iron Fe3, so multiply it by 3. So this is the balanced chemical equation for the reaction of iron with steam. Actually steam is passed on hot iron, then hydrogen gas is released, and during this Fe3O4 is formed, because this is actually mixture of iron second and iron third oxide. Okay, and now second part is reaction of calcium and potassium with water. So see what happens. Calcium with water, when it reacts with water, it forms calcium hydroxide plus hydrogen, and when potassium react with water, then it forms potassium hydroxide plus hydrogen. Actually when potassium react with water, first of all it forms potassium oxide, then it forms potassium hydroxide. Okay, now you can balance it. You can see here OH whole twice means 2 oxygen, so multiply it by 2. Now total oxygen in left side 2, and here also 2. 2 2s are 4 hydrogen, so 2 hydrogen, OH whole twice means 2 hydrogen and 2 hydrogen. Okay, so this is balanced now, and now you can see here multiply it by 2, so total hydrogen atoms are 2 hydrogen and 2 hydrogen, 4 hydrogen in right side, so multiply it by 2. Okay, now 2 2s are 4 hydrogen, and here also 4 hydrogen atoms, 2 oxygen, this is 2 oxygen. So in this way, now potassium you can see 2K means 2 potassium atoms. So this is now balanced. So in this way, these are balanced chemical equation when calcium react with water and potassium react with
water. Okay, now you can take a screenshot of it. Actually, these two questions page number 40 and this question is on page number 46. Okay. Now, the next question is question number 3 on the page number 46. Page number 46 and it is question number 3. Okay. This is the samples of four metals A, B, C and D are taken and added to solution one by one. The result obtained has tabulated as following.
metal A, B, C and D. Here is iron, second sulfate, this is copper, second sulfate, this is zinc sulfate, and this is silver nitrate. Okay. Here no reaction, no reaction. Here displacement reaction, dash. Okay. In B, displacement, here dash, no reaction, dash. In C, no reaction, no reaction, no reaction, displacement. And in case of D, no reaction, no reaction, no reaction, and no reaction. Okay. This is the result which is tabulated. Okay. Now the question related to this table is use this table and answer about the metals A, B, C and D. Okay. First question is which is most reactive metal?
second is what would you observe when B is added to a solution of copper second sulfate and third part is arrange the metals in decreasing order of their reactivity. Okay. Now this is the complete question. So you can see 4 metals A, B, C and D. ये 4 metals लिया गया है और these metals were taken and added to the solution. इन metals को लेकर के और अलग अलग solution में ऐड किया गया और वो solution क्या है? आयरन सेकेंड सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज टेबुलेटेड एज फॉलोज. जो रिजल्ट मिला उसको एक टेबल के फॉर्म में बना लिया, टेबुलेट कर दिया. टेबुलेट मीन्स किसी भी ऑब्जर्वेशन को या किसी भी रिजल्ट को टेबल के फॉर्म में बनाना, दैट इज टेबुलेशन. तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैज टेबुलेटेड, यानी रिजल्ट को टेबुलेट कर दिया गया, टेबल फॉर्म में बना दिया गया. एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द मेटल्स ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी ये सभी 4 मेटल्स के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको आंसर देना है. पहला, विच मेटल विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी ए बी सी डी में से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. दूसरा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट, कि जब बी को कॉपर सेकेंड सल्फेट में ऐड किया जाएगा, मीन्स उसको मिलाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. और लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी ए बी सी डी मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कर देना है. तो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस टेबल. व्हेन मेटल ए is added to iron second sulfate, no reaction takes place. Means जब मेटल A को आयरन सेकेंड सल्फेट के साथ ऐड किया तो नो रिएक्शन. इसका मतलब ये हो गया कि मेटल A जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है. ठीक है, एक कंक्लूजन ये निकला. अब आगे देखिए, मेटल A जब कॉपर सेकेंड सल्फेट में ऐड किया गया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ए
आयरन से तो कम रिएक्टिव है लेकिन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसको इस तरह आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन copper but less reactive than आयरन। ठीक है, क्योंकि आयरन के साथ ये रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब A इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, बट A when added to copper second sulfate it gives displacement reaction। तो इसका मतलब A जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन मेटल A आयरन से कम रिएक्टिव है। अब आइए दूसरी टेबल, मेटल B व्हेन एडेड टू आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी B को आयरन सेकेंड सल्फेट में जब ऐड किया गया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, जबकि मेटल A आयरन सेकेंड सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये, हाँ दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि मेटल B जब जिंक सल्फेट के साथ ऐड किया गया तो नो रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल B जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल B का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करने पर नो रिएक्शन आ रहा है। इसका मतलब मेटल B जिंक से कम रिएक्टिव है लेकिन आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसको भी एक पॉइंटर आप नोट कर सकते हो कि मेटल B is more reactive than iron but less reactive than जिंक। ठीक है, B आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है बट जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक है, अगला देखिए, C व्हेन एडेड टू आयरन सेकेंड सल्फेट इट गिव्स नो रिएक्शन, व्हेन C एडेड टू कॉपर सेकेंड सल्फेट इट गिव्स नो रिएक्शन, when C is added to zinc sulfate it gives no reaction। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल C आयरन, कॉपर, जिंक इन तीनों से कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रहा है। बट सिल्वर नाइट्रेट में जब इसको डिप किया गया मेटल C को तो इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मीन्स metal C is less reactive than iron, copper and zinc, but it is more reactive than silver। कि ये आयरन, कॉपर, जिंक इन तीनों से कम रिएक्टिव है बट सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो यू कैन point it as metal C is less reactive than iron, copper and जिंक।
okay, but more reactive than silver. Okay, now you can take a screenshot of it. Now answer for first question. First question is which metal is most reactive metal? So you can see A is more reactive than iron, A is less reactive than iron, यानी A आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, A कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। बट B क्या कर रहा है, B डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है आयरन सेकंड के साथ, लेकिन कॉपर सेकंड के साथ डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिंक के साथ नो रिएक्शन, ठीक है। अब जरा देखिए, ए आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देता लेकिन कॉपर के साथ दे रहा है, और बी क्या कर रहा है, आयरन सेकंड सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ए इज लेस रिएक्टिव दैन बी, ठीक है। और जरा आप सी को देखिए, नो रिएक्शन, यानी ए और बी जहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहे हैं उसमें मेटल सी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। सिल्वर के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि B is more reactive than A and C is less reactive than A and it is less reactive than B। ये निकल के आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। अब जरा डी को देखिए, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो इससे ये तो पता चल गया कि सबसे कम रिएक्टिव डी मेटल है, जो कि किसी के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ, डी, ठीक है। कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए इज लेस रिएक्टिव देन बी, यानी ए जो है वो बी से कम रिएक्टिव है, क्योंकि बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ दे रहा है लेकिन ए मेटल इसके साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब बी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। और देखिए सी जो है, जिसको ए डिस्प्लेस कर रहा है या जिसको बी डिस्प्लेस कर रहा है उसको सी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि सी जो है ए और बी इन दोनों से कम रिएक्टिव हुआ, और डी में नो रिएक्शन इन ऑल केसेस। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ, डी। इसका मतलब अब क्वेश्चन है विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अब आप जवाब दे सकते हो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज
बी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज बी। और क्यों मोस्ट रिएक्टिव हुआ, इट इज एक्सप्लेन्ड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ बी इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट। अब देखिए जरा कि B इज मोर रिएक्टिव देन A। अगर B A से ज़्यादा रिएक्टिव है तो A जिसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है तो श्योरली B भी उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो B जो है क्योंकि A से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए अगर B को कॉपर सेकेंड सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि A से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मेटल A कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है जो कि B से कम रिएक्टिव है, तो B श्योरली कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब B मेटल को कॉपर सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि व्हेन मेटल B इज एडेड टू copper second sulfate, it will give, it will show displacement reaction. Okay, you can write like this, और ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, इट विल डिस्प्लेस कॉपर। यू कैन राइट लाइक दिस, इट विल डिस्प्लेस कॉपर। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज अरेंज दीज मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में ABCD मेटल्स को लगाना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, B। उससे कम रिएक्टिव कौन है, A। उससे कम रिएक्टिव कौन है, C। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, D। ओके, तो B के बाद A, फिर C, फिर D। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now this class is over today, and in the next class we will discuss some other important NCERT in text questions. Thank you, students.